Good morning, everyone, and a warm welcome to all of you. On behalf of Money Life Foundation and the RTI Center, I'd like to thank you for joining us today for this important seminar on leveraging RTI and social media for a better quality of life. We are thrilled to see so many of you who are concerned, passionate citizens gathered here, committed to making a difference in our city. In a city like Mumbai, with rapid urbanization, we are often faced with challenges related to public amenities, infrastructure, and basic quality of life. Issues like pothole-ridden roads, poorly maintained gardens, dangerous public places, and mismanaged urban development can seem overwhelming. Today, we are here to explore how tools like the RTI, Right to Information Act, and the power of social media can help us as citizens to hold authorities accountable and create real, lasting change. This event will bring together some of the most well-known RTI and civic activists to share their experiences and insights on how you too can use RTI and social media to address these pressing concerns. So here's the plan for today. In the first half of the day, you will hear from our esteemed speakers who will have played crucial roles in exposing issues and driving change through RTI and social media. After lunch, we'll have a panel discussion where experienced RTI activists will share success stories, discuss the impact and challenges of these tools, and explore whether they offer permanent solutions to civic problems in a city like Mumbai. We'll end the day with an open Q&A session where you'll have a chance to ask our experts for guidance on your own RTI applications or issues that you're passionate about. So without further ado, I would like to begin our session by introducing and welcoming our first speaker. Our first speaker for today is Mr. Anil Galgali, a renowned journalist and one of Mumbai's foremost RTI activists. Mr. Galgali is known for his fearless work in using RTI to expose corruption and inefficiencies in public projects. He is a freelance journalist by profession and the editor of Agnisheela, a monthly magazine that is published in Hindi. Using tools such as RTI, Mr. Galgali tries to bring to light issues related to civic affairs and especially those close to a common man's heart. Through RTI, he has exposed several frauds and wrongdoings committed by various authorities such as the PMC, MMRDA, Mumbai Metro, and Mumbai University. His efforts have shed light on key issues that affect the lives of ordinary citizens. And today he will be speaking on a crucial topic, RTI and social media as a tool for civic advocacy. Please join me in welcoming Mr. Galgali. थैंक यू मनी लाइफ। आज जो RTI को लेकर जो सेशन है तो डायरेक्टली राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, जिस तरह से राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट यूज़ कैसे करने, फिर उसके बाद उसको सोशल मीडिया के माध्यम से या अपने ब्लॉग के माध्यम से अलग अलग जो प्रेशर ग्रुप के माध्यम से किस तरह से सरकार तक अपनी बात को पहुंचाना काफ़ी महत्वपूर्ण है। बेसिकली राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट काफ़ी सरल और एक अच्छा कानून है। अगर हम देखेंगे कि 2005 में जब पूरे देश में इसको लागू किया गया, उसके पहले महाराष्ट्र में 2003 में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लागू किया गया था। लेकिन वहाँ पर दो चीज़ें थी कि पहले आपको इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए, एक कारण इसके पहले देना पड़ता था। मगर जब डॉक्टर मनमोहन सिंह यूपीए गवर्नमेंट थी तो उन्होंने जो एक क्लॉज था कि आपको इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए, जो रीजन पहले नागरिकों को देना पड़ता था, तो 2005 के एक्ट में उसको उन लोगों ने डिलीट किया। महाराष्ट्र में जब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट शुरू हुआ तो इसके पहले यहाँ पर जो एक सिस्टम थी तो हमें लोकायुक्त तक जाना पड़ता था। उस टाइम में इन्फॉर्मेशन कमीशन नहीं था। मगर आफ्टर 2005 जब महाराष्ट्र में इन्फॉर्मेशन कमीशन बनाया गया, जैसे कि बॉम्बे में चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन, कोकण में कोकण खंडपीठ बनाया गया, औरंगाबाद खंडपीठ बनाया गया, तो उसके बाद नागरिकों को इन्फॉर्मेशन जब उन्हें नहीं मिलती है तो अपील करने के लिए एक खंडपीठ की स्थापना की गई। बेसिकली राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, क्योंकि कई बार हम जाते हैं तो पता चलता है कि सूचना यानी जो व्हाट इज द इन्फॉर्मेशन, सबसे बेसिकली ये है क्योंकि आज कई सारे जो सरकार के जो अलग अलग ऑफिसेस है वहाँ पर सवाल पूछने पर आपको जानकारी नहीं मिलती, आपने सवाल क्यों पूछा, ये सबसे बड़ा अहम सवाल है। तो सबसे पहले कि सूचना यानी क्या, सूचना यानी जो उनके रिकॉर्ड पर जो जानकारी अवेलेबल है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या डिजिटल फॉर्म में या उनके जो अलग अलग फाइल्स है, तो हमको उसको सूचना कहते हैं। बेसिकली जब हम राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो कई सारे लोग सवाल पूछते हैं कि ये क्यों हुआ, एक कैसे हुआ, ये क्यों नहीं हो रहा है। तो इस तरह के सवालों को जवाब देने के लिए RTI में कोई अनिवार्यता नहीं है। तो सबसे पहले आपको व्हाट इज द इन्फॉर्मेशन, आपको डॉक्यूमेंट मांगने हैं। जब भी कोई एप्लीकेशन ने डॉक्यूमेंट मांगे सरकार के पास से या डिपार्टमेंट के पास से तो उसको इन्फॉर्मेशन 3 to 5 डेज में मिलने के कई सारे उदाहरण हैं। मगर जब आप सवाल पूछेंगे तो 30 दिन भी लगते हैं,
आपको फर्स्ट अपील करनी पड़ती है, वहाँ पर भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तो बेसिकली सूचना यानी क्या, ये आपको जानने की आवश्यकता है। सूचना यानी जो सार्वजनिक जो उनका प्राधिकरण है, जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है, उनके पास जो रिकॉर्ड उनके ऑफिस में अवेलेबल है, वो चाहे इलेक्ट्रिक फॉर्म में हो, डिजिटल फॉर्म में हो, या जो अलग अलग जो फाइल के माध्यम से जो डॉक्यूमेंट होते हैं, उसे हम लोग सूचना कहते हैं बेसिकली। सेकेंडली, जब भी आप राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का इस्तेमाल करते हो तो बेसिकली आपको सब्जेक्ट की जानकारी होना आवश्यक है। अगर आपने एक विषय को लेकर एक इन्फॉर्मेशन मांगी तो आपको 3 to 5 डेज में इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। मगर कई सारे जो एप्लीकेंट होते हैं एक ही सब्जेक्ट में कई सारे सवाल पूछते हैं, कई सारी इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, तो उसके अलग अलग पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं। तो हमें बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन के लिए एक आरटीआई एप्लीकेशन करने की आवश्यकता है। जैसे कि आपको मैं उदाहरण में बोल रहा हूँ कि जैसे कि मुख्यमंत्री सचिवालय महाराष्ट्र में, अगर आपको मुख्यमंत्री सचिवालय में अभी जैसे कि राज्यपाल नॉमिनेटेड एमएलसी की जो एक लिस्ट अभी हाल ही में डिक्लेयर हुई है, तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन मांगना है तो आपको तरीका क्या होना चाहिए कि मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा जो राज्यपाल को जो एमएलसी की जो लिस्ट की जो उन्होंने सिफारिश की है, रिकमेंडेशन किया है, उसकी लिस्ट की कॉपी विथ ऑल डॉक्यूमेंट दी है। अगर आपने इतना ही मांगा तो आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। मगर हम लोग यहाँ पर 3-4 अलग अलग सवाल करते हैं, तो उस सवाल में सरकारी अधिकारी हमको उलझाते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन 30 डेज में नहीं मिलती। तो बेसिकली अगर आपको सब्जेक्ट पता है, आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए वो अगर आपको पता है, तो निश्चित तौर पर आपको इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल सकती है। तो आज जिस तरह से राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 से लेकर 2024 है, कई बार लोग कहते हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, हमें फर्स्ट अपील करना पड़ता है, हमको सेकेंड अपील करने के बाद भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, क्योंकि आपका जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर नहीं होता है कि आपको क्या चाहिए। अगर आपने क्या चाहिए पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को समझाने में या अपने एप्लीकेशन के माध्यम से सक्सेस हो गए, तो आपको इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल सकती है। आपको फर्स्ट अपील और सेकेंड अपील करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हमें सब्जेक्ट की जानकारी होने की आवश्यकता है। जैसे कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि आपको अभी मैंने एग्जांपल दिया कि एमएलसी की लिस्ट, तो आपको बेसिकली उतना ही मांगना है कि राज्य सरकार द्वारा राज्यपाल को जो एमएलसी के लिए जो सिफारिश की गई लिस्ट की कॉपी साथ में सभी डॉक्यूमेंट के साथ दी जाए, तो आपके सारे के सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो एक ही सवाल में आपको मिल सकता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अध्ययन करने की आवश्यकता है। सेकेंडली, जब आप इन्फॉर्मेशन मांगते हो, जैसे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का कैरेक्टर एक ही है, आपको वहाँ पर 10 रुपये की फ़ीस ही भरनी है, मगर वहाँ का फ़ीस का जो मोड होता है वो अलग होता है। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट में हम लोग कोर्ट फी की टाइम 10 रुपये का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैश पैसा भर सकते हैं, हम आपको इनको आईपीओ भी दे सकते हैं। मगर जब सेंट्रल गवर्नमेंट में हम जब राइट टू इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं तो हमें कोर्ट फी स्टैम्प लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पर वैलिड नहीं है। तो वहाँ पर आपको इंडियन पोस्टल ऑर्डर, बैंकर चेक, आईपीओ, इस तरह की चीज़ों को आपको इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट में आप एप्लीकेशन करते हो, अगर आपने 10 रुपये की कोर्ट फी स्टैम्प जो हमारे स्टेट में लगाते हैं उसको आपने इस्तेमाल किया, तो आपका एप्लीकेशन को वो लोग रिजेक्ट कर सकते हैं। 90% लोग रिजेक्ट करते हैं, कुछ अधिकारी अच्छे होते हैं तो आपको एक बार चांस देते हैं। तो हमें सबसे पहला सब समझने की आवश्यकता है कि हमें स्टेट में एप्लीकेशन करना है तो आपको फ़ीस क्या भरनी है, सेंटर में भरना है तो फीस क्या भरनी है। क्योंकि बेसिक अगर चीज़ें आपको पता नहीं है तो आपका एप्लीकेशन 3-6 महीने 8 महीने घूमते रहेगा, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। अगर आपने फर्स्ट अपील की तो आपको वही जवाब मिलेगा, सेकेंड अपील में यही मिलेगा। तो बेसिकली आपको जानना है कि हमें क्या चाहिए। अगर आपको पता चला कि हमको क्या चाहिए सरकार से, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, उतना आपने बेसिकली नॉलेज आपको होगा तो निश्चित तौर पर आपका एप्लीकेशन 99% रिजेक्ट नहीं होगा, जब तक और कोई अलग विषय होगा। सेकेंडली, जब हम राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें 3 चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, किस पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के पास आपकी इन्फॉर्मेशन है, उसमें भी अगर दिक्कत है, आज सभी चाहे महानगर पालिका हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हर एक के डिपार्टमेंट में उन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट एक PDF उन्होंने बना के ऑनलाइन उसको लोगों के लिए इस्तेमाल करने के लिए छोड़ दिया है कि आपको पता नहीं है कि अगर UD डिपार्टमेंट में कौन सा इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है, तो वो जानकारी UD डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर उन्होंने अपलोड कर दी है। 10 साल पहले ये नहीं था, बिकॉज ऑफ कंटिन्यू अलग अलग एप्लीकेशंस, प्रेशर ग्रुप की वजह से अभी हर एक डिपार्टमेंट ने उस डिपार्टमेंट के पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, उनका नाम, उनका एड्रेस और उसके कौन से रिलेटेड सब्जेक्ट उसके साथ है, उसकी एक लिस्ट को उन्होंने ऑनलाइन
अभी अपलोड किया है। अगर आप अभी गूगल चेक करेंगे यूडी डिपार्टमेंट, तो यूडी डिपार्टमेंट में आपको आरटीआई की एक फ़ाइल मिलेगी। उसमें आपको उस यूडी डिपार्टमेंट में सभी अधिकारियों के नाम, जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है उसकी जानकारी आपको वहाँ पर मिलेगी। तो बेसिकली अगर आपको फास्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, कई बार हम लोग क्या करते हैं कि मुख्यमंत्री को आरटीआई लिख देते हैं, तो मुख्यमंत्री के ऑफिस से विदिन 5 डेज वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड होता है, लेकिन उसमें समय जाता है। अगर आपको पता है कि मेरे यूडी डिपार्टमेंट में, होम डिपार्टमेंट में या हमारी वाटर डिपार्टमेंट में इंफॉर्मेशन किस अधिकारी के पास है, अगर आपने उसी को ही मार्क किया तो आपको इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द मिल सकती है। तो बेसिकली थोड़ा सा आपको अभी थोड़ा अध्ययन करने की आवश्यकता है गूगल में जाकर कि कौन से इन्फॉर्मेशन किस अधिकारी के पास है। सेकेंडली, अगर आप किसी भी मंत्रालय में जाएंगे या म्यूनसिपलिटी ऑफिस में जाएंगे अभी फ़िलहाल, तो वहाँ पर भी उन्होंने बड़े बड़े बोर्ड लगाए कि किस अधिकारी के पास कौन सी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो थोड़ा सा हमें समय निकालने की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग अगर काल्पनिक तौर पर, जैसे कि मुख्यमंत्री की इन्फॉर्मेशन को हम लोग अगर पीएमओ को मांगेंगे तो उधर आने में समय लगेगा, कई बार एप्लीकेशन निचले स्तर से आने में समय जाता है। तो बेसिकली सबसे पहली बात है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन में हु इज द पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, आपका सब्जेक्ट क्या है, और आपको स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट मांगना है। अगर आपने डॉक्यूमेंट मांगने पर जोर दिया तो मेरा दावा है कि आपको कभी फर्स्ट अपील करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज कई सारे जो लोग हमारे पास आते हैं तो उसमें पता चलता है कि लोग 90% जो लोग होते हैं उनको पता नहीं होता कि पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर कौन है, तो उसके वजह से एप्लीकेशन घूमते रहते हैं। तो बेसिकली राइट टू इन्फॉर्मेशन में पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, डिपार्टमेंट का नाम और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मांगी है। आज राइट टू इन्फॉर्मेशन के वजह से, जैसे कि शैलेश जी है, कई सारे अपने अधिकारी जो अपने कार्यकर्ता काम करते हैं, तो आज प्रेशर ग्रुप बनने से आज अगर हम देखेंगे कि म्यूनसिपलिटी डिपार्टमेंट काफ़ी एडवांस हो चुका है, स्टेट गवर्नमेंट के कई सारे डिपार्टमेंट एडवांस हो चुके हैं। उन्हें पता है कि इन्फॉर्मेशन एक्ट 4(1) इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली जब 2005 में पूरे देश में राइट टू इन्फॉर्मेशन लागू किया गया एक बड़े पैमाने पर, तो हमने 2 सालों में क्या किया कि हर एक डिपार्टमेंट में जाकर आप राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 4 को इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर 4 इम्प्लीमेंट होगा तो आपको 90% इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली उनके वेबसाइट पर अवेलेबल होगी। आज कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट है, महानगर पालिका हो चाहे अपने स्टेट गवर्नमेंट को हो, तो वहाँ पर उन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 4 को इम्प्लीमेंट नहीं करने की वजह से आज कई सारी दिक्कतें आ रही है। तो बेसिकली जब भी आप इन्फॉर्मेशन मांगते हो तो हमें 3-4 चीज़ों का तो जो बताया, हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। और सेकेंडली जो इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद, क्योंकि 90% इन्फॉर्मेशन तो मिल जाती है, अगर आपको बाई चांस अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दी, डिनाई किया या मिसगाइड की, तो अपने पास फर्स्ट अपील करने का ऑप्शन होता है। विदिन 30 डेज आप उसमें आप समय मत घलाइए। जब आपको कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होती है एज ए ऑर्डर, तो विदिन 30 डेज आपको फर्स्ट अपील फाइल करने की आवश्यकता है। अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट है, उन्होंने अधूरी जानकारी दी है या मिसगाइडेड करने वाली दी है या आपको ऑर्डर नहीं दिया है, तो विदिन 30 डेज अगर आपने फर्स्ट अपील फाइल किया तो निश्चित तौर पर आपकी अपील को लोग मानते हैं। अगर आपने 40 डेज लगाए, 50 डेज लगाए, तो कहीं ना कहीं तो जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर और फर्स्ट अपीलेट ऑफिसर दोनों एक ही डिपार्टमेंट के होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि आपका फर्स्ट अपील को रिजेक्ट करें। अगर आप सेकेंड अपील में जाएंगे तो इट्स टेक शॉर्ट टाइम। तो फर्स्ट अपील विदिन 30 डेज में करने की आवश्यकता है, और बेसिकली उसमें उसी मुद्दों को उठाइए जो आपको उन्होंने इन्फॉर्मेशन में नहीं दिया है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि जब आप फर्स्ट अपील करते हो तो जो आपका फर्स्ट एप्लीकेशन होता है उसको छोड़ के आप इन्फॉर्मेशन मांगने की कोशिश करते हो, तो 99% आपका फर्स्ट अपील भी रिजेक्ट हो सकता है। जो आपने पब्लिक इन्फॉर्मेशन को, जो एप्लीकेशन में जो इन्फॉर्मेशन मांगी है, उसी के आधार पर जो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, जो आपको अधूरी मिली या शायद आपको नहीं देने की उन्होंने कोशिश की, उस पर आप फोकस कीजिए। तो निश्चित तौर पर जब फर्स्ट अपीलेट ऑफिसर आपकी जब हियरिंग लेता है तो सारे मुद्दे को सामने रखता है। और मेरा ये भी अनुभव है कि अगर आपने फर्स्ट अपील को शानदार तरीके से पेश किया तो 90% लोगों को उसी वक्त इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। क्योंकि कहीं ना कहीं तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर में डर रहता है कि आगे बढ़कर अगर सेकेंड अपील करने पर मुझे फाइन लग सकता है, मेरे पर कार्रवाई हो सकती है। भले ही आज लोग कहते हैं कि लोगों में डर नहीं है, आज भी पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर में डर है। सिर्फ आपका एप्लीकेशन अच्छा होना चाहिए, और जो फर्स्ट अपील अगर आपने अच्छे माइंड से किया तो निश्चित तौर पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलना ही मिलना है। जैसे कि बॉम्बे में साउथ मुंबई मैंने एक बिल्डिंग की इन्फॉर्मेशन मांगी थी, तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी। उन्होंने कहा कि प्लीज़ कम एंड
आप उसको विजिट करके डॉक्यूमेंट को चेक कीजिए। तो उसके खिलाफ मैंने जब फर्स्ट अपील की तो फर्स्ट अपील इतनी परफेक्ट थी, तो फर्स्ट अपील के टाइम ही मतलब हियरिंग होने के पहले ही उस पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिस ने सारी इन्फॉर्मेशन को अवेलेबल करवाया। क्यों? उसे डर है, क्योंकि जो हमने मांगा है आपने नहीं दिया है, तो ये डर बनाने की भी ज़रूरत है, क्योंकि उसके लिए आपको फर्स्ट अपील करने का तरीका भी काफ़ी शानदार होना चाहिए। उसमें आपको आपका फर्स्ट एप्लीकेशन जो आपको ऑर्डर आई है, और कभी भी फर्स्ट अपील में जैसा कि स्टेट ऑफ गवर्नमेंट में 20 रुपीज़ की कोर्ट फीस लगाने की आवश्यकता है। कई बार एप्लीकेंट फीस नहीं लगाते, तो कई बार उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है, फिर उसको एप्लीकेशन करना पड़ता है, तो ये काफ़ी समय लगता है। क्योंकि आज हमारे फर्स्ट अपील और सेकेंड अपील के पास इतने पेंडिंग्स मामले हैं, तो उसमें कई बार समय जाता है। तो जब भी आप करोगे, परफेक्ट काम करोगे, तो आपका परफेक्ट टाइम पर काम होगा। सेकेंडली, जब आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि बेसिकली पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, फर्स्ट अपीलेट ऑफिसर, ये ठीक है, बस इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद उसका इस्तेमाल कैसे करना। क्योंकि आज कई सारे इश्यूज जो आज एक्सपोजर हो रहे हैं बिकॉज ऑफ RTI, जैसे कि पिछले कई सालों में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, उन्होंने RTI की जो धार है, जो उसकी एक तीव्रता को कम करने के लिए कई सारे अमेंडमेंट इसलिए किए हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि लोग ज़्यादा सवाल सरकार से नहीं पूछे। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा भाषण में कहते हैं कि लोग सवाल पूछे, लेकिन जब सवाल पूछने का पूछते कि आपने सवाल क्यों पूछा, अब डॉक्यूमेंट मांगिए। तो कहीं ना कहीं तो ये हमें एक प्रेशर बनाने की आवश्यकता है। तो जब आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि बेसिकली पब्लिक इन्फॉर्मेशन के ऑफिसर के पास ही इन्फॉर्मेशन होती है, कोई आप नई उसकी इन्फॉर्मेशन का ईजाद नहीं करते। क्योंकि कई बार जब आरोप लगते हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट करने वाले लोग ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, लोग उसका मिसयूज़ कर रहे हैं, मिसयूज़ कैसे करेंगे? कोई इन्फॉर्मेशन मेरे घर पर नहीं होती, ना किसी के घर पर होती है, वो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के पास ही इन्फॉर्मेशन होती है। वही इन्फॉर्मेशन आम नागरिक या कोई एप्लीकेंट या जो कोई भुक्तभोगी होगा, वो एप्लीकेशन उस इन्फॉर्मेशन मांगता है। जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के पास होती है, उससे हम लोग कैसे उसको ब्लैकमेलिंग कर सकते हैं? क्योंकि आपकी धरोहर है, हमने आपकी धरोहर थोड़े समय के लिए हमारे पास मांगी है, उसमें जो गलत है क्या सही है, उसका अध्ययन करने के बाद आम नागरिक सरकार के पास या कई लोग कोर्ट में चले जाते हैं कि इस तरह की चीज़ें गलत हो रही है। तो बेसिकली इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद उसका इस्तेमाल कैसे करना, कैसे प्रेशर बनाना, कैसे सरकार से काम करवाना, एक ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई, हम क्या करेंगे? हम घर में जाके शोकेश में रखेंगे या उसको रद्दी में डालेंगे, या हम लोग इसका बहुत बड़ा एक लाइब्रेरी बना के रखेंगे कि हमने 1 लाख इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया है। व्हाट इज़ यूज़? तो उसका यूज़ करने के लिए हमें उस इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा पढ़ने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि आपने इन्फॉर्मेशन मांगी है, तो आपको पता है कि उस इन्फॉर्मेशन में क्या गलत है, क्या सही है। अगर आपने उसको थोड़ा सा स्टडी किया, तो निश्चित तौर पर उसमें जो गलत चीज़ें हैं उसे हम लोग एक्सपोजर कर सकते हैं। अभी गलत चीज़ें कैसे आप एक्सपोजर करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपके पास एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आई, जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि गोरेगांव में ओबराय जो मॉल है, वहाँ पर ओबराय ने 7 बंगलोज बनाए थे। उसमें अमिताभ बच्चन, हिरानी, ऐसे बड़े बड़े 7 लोगों को बंगलोज दिए थे। उन्होंने बंगलोज जब लिए तो जो उनका सैंक्शन प्लान था म्यूनसिपालिटी के हिसाब से, उस मुताबिक उन्होंने काम नहीं किया, तो इट इज़ अ इलीगल। तो म्यूनसिपल जो ऑफिसर ने उन्हें नोटिस दी MRTP एक्ट के तहत कि आपने जो बंगलों में जो अमेंडमेंट किया है, गलत किया है, तो उसके लिए आपको कार्रवाई को सामना करना पड़ेगा। तो जब इन्फॉर्मेशन हमें मिली तो हमने क्या किया, उस इन्फॉर्मेशन का स्टडी किया। हमने MRTP एक्ट के तहत क्या क्या उसमें प्रावधान है। MRTP में क्या होता है कि जब भी कोई इलीगल करता है या प्लान के हिसाब से कोई काम नहीं करता है, तो उसे OC नहीं मिलती। OC मिलने के लिए उसे उस प्लान के हिसाब से काम करना पड़ता है, नंबर 1, या अमेंडमेंट प्लान डालना पड़ता है। तो अमेंडमेंट प्लान जब डालते हैं तो उसको करोड़ों रुपया फाइन, जुर्माना के तौर पर देने पड़ते हैं। ये 2 चीज़ें हैं। जब हमें इन्फॉर्मेशन मिली तो हमने उस इन्फॉर्मेशन के डॉक्यूमेंट को जेरोक्स किया और हमने म्यूनसिपल कमिश्नर को एक मेमोरेंडम दिया कि फला जगह पर इन्होंने सैंक्शन प्लान के हिसाब से काम नहीं किया है और इन्हें नोटिस दिए, तो उस पर एक्शन लिया जाए। जब ये बात उन्हें पता चली तो उन्होंने अमेंडमेंट प्लान डाला, और अमेंडमेंट प्लान डालने के बाद MRTP एक्ट के तहत बिल्डिंग प्रपोजल एक डिपार्टमेंट होता है। क्योंकि हमारे जो मुंबई में एक बिल्डिंग प्रपोजल होता है और वर्ल्ड लेवल में बिल्डिंग फैक्ट्री होता है। जब उसको OC मिलती है तो बिल्डिंग फैक्ट्री डिपार्टमेंट का काम चालू होता है। उसे OC नहीं मिलती है तब बिल्डिंग प्रपोजल उस पर एक्शन लेता है। तो उसे OC नहीं मिली थी, तो
तो बिल्डिंग प्रपोजल के पास जब वो अमेंडमेंट प्लान चला गया तो अमिताभ बच्चन और 7 लोगों को 9 करोड़ रुपीस जुर्माना भरना पड़ा, तब जाके उसका प्लान अमेंडमेंट हुआ। तो इट इज़ अ विन ऑफ द RTI। अगर RTI नहीं होता, चाहे अमिताभ बच्चन हो या कोई भी हो, वो कानून का उल्लंघन करते आपको पता नहीं चलता। बिकॉज ऑफ RTI डॉक्यूमेंट मिले, हम लोगों ने उसको परस्यू किया म्यूनसिपल कमिश्नर के पास, बाद में वहाँ के जो बिल्डिंग प्रपोजल के जो अधिकारी थे, तो उसके बाद उसको अमेंडमेंट प्लान डाल के उधर उसको कहीं ना कहीं ऑथोराइज करने के लिए पैसे भरने पड़े। एंड मैं क्या बता रहा हूँ कि अगर आपने उसको प्रेशर किया, उसको ठीक ढंग से आप चले गए, उसको सोशल मीडिया माध्यम हो, मीडिया का माध्यम हो या रिटर्न कंप्लेंट के माध्यम से अगर आपने उसको फॉलोअप किया तो निश्चित तौर पर उस पर एक्शन होती है। मुंबई में कोई भी आदमी छोटा बड़ा नहीं होता है, कानून सभी के लिए एक होते हैं। उसके लिए थोड़ा सा आपको स्टडी करना पड़ता है, और स्टडी करने के बाद अगर आपने फॉलोअप किया तो निश्चित तौर पर एक्शन होती है। क्योंकि बहुत सारे जो राइट टू इन्फॉर्मेशन होने के बाद लोग पूछते हैं हमने RTI किया, क्या लाभ हो गया, सामने वाले पर कुछ एक्शन नहीं हुई, एक्शन कब होगी। उसके लिए हमें एक प्रेशर ग्रुप बनाने की ज़रूरत है, चाहे सोशल मीडिया हो, रिटर्न कंप्लेंट हो, या आपको रिट पिटिशन के माध्यम से भी आप जा सकते हो। कई लोग मुंबई हाई कोर्ट चले जाते हैं। सेकेंडली और एक ऑप्शन है हमारे पास सिटीजन चार्टर। जैसे कि आज मुंबई में कितने लोगों को पता होगा कि हमारे सरकार, जो हमारी सरकार है, सरकार आप सबकी है, लेकिन हम लोग कुछ समय के लिए लगता है कि सरकार सिर्फ कुछ लोगों की है। सरकार ने हमारे लिए लोकशाही दिन बनाया है। लोकशाही दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। एक सिटीजन चार्टर है, और अभी जो नया राइट टू सर्विस एक्ट आया है, मेरा तो मानना है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अलावा अगर हमने राइट टू सर्विस पर जोर दिया, क्योंकि 90% लोगों को इश्यूज़ क्या होते हैं कि हमने रिटर्न में कंप्लेंट किया, उस पर एक्शन नहीं हो रही है, हमने रिटर्न में सबमिशन किया, उस फाइल पर सरकारी अधिकारी नहीं देख रहे, हमने कोई प्रपोजल लिया, मंत्री महोदय उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो राइट टू सर्विस क्या है कि आपको हर काम की एक सीमा दी है, 7 डेज, 15 डेज, 30 डेज। उस सीमा के अंदर काम नहीं हो तो राइट टू सर्विस एक्ट लागू होता है। और राइट टू सर्विस एक्ट राइट टू इन्फॉर्मेशन से भी पावरफुल है। अगर आपने राइट टू इन्फॉर्मेशन में आपको 10 रुपये की फ़ीस भरनी पड़ती है, लेकिन राइट टू सर्विस में आपको फ़ीस नहीं भरनी पड़ती। वहाँ पर भी अपील की सुविधा है, वहाँ पर किसी भी तरह की आपको फ़ीस भरने की आवश्यकता नहीं है। यानी समांतर एक कानून सरकार ने बनाया है, लेकिन ये ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पर आपको बिना पैसे, जैसे कि RTI में 10 रुपये तो आपको खर्चे करने पड़ते हैं, पर राइट टू सर्विस में आपको 10 रुपये खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली लोकशाही दिन, जैसे कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल गई या आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप किसी इश्यू को लेकर झगड़ा कर रहे हैं सरकार से, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, वो सरकारी बाबू आपके एप्लीकेशन को रिप्लाई नहीं दे रहा है, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो आप क्या करेंगे। तो हर सोमवार को महीने के कलेक्टर डिपार्टमेंट होता है। जैसे कि मुंबई उपनगर में मुंबई सबब के पास कलेक्टर डिपार्टमेंट है, सिटी में कलेक्टर है, ठाणे में कलेक्टर है, जैसे अलग अलग जगह पर अलग अलग कलेक्टर बैठते हैं। तो वहाँ पर हर महीने के सोमवार को एक लोकशाही दिन होता है। लोकशाही दिन इतना इम्पोर्टेंट होता है कि उस लोकशाही दिन में कलेक्टर खुद उस मीटिंग को चेयर करता है, और पूरे बम्बई के जितने भी अधिकारी होंगे, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, महानगर पालिका के अधिकारी हो, सरकारी अधिकारी हो, वो वहाँ अटेंड करते हैं। तो लोकशाही दिन का महत्व क्या होता है कि समझा, मैं अनिल गलगली, मैंने किसी विषय को लेकर एप्लीकेशन किया और 2 महीने से मुझे किसी ने रिप्लाई नहीं दिया, ना मेरे एप्लीकेशन पर किसी ने कार्रवाई की, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। मैं RTI डालूंगा तो मुझे 30 डेज में रिप्लाई आएगा, तो उसमें समय जाता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सीधा लोकशाही दिन में जाऊँगा, वहाँ पर एप्लीकेशन मिलता है, मैं फॉर्म भरूँगा कि मैंने 2 महीने पहले शिकायत की थी, तो आपको आपका पूरा नाम, एप्लीकेशन की कॉपी आपको अटैच करनी पड़ती है। तो खुद कलेक्टर साहब आपकी बात को सुनेंगे। कलेक्टर उस मीटिंग को चेयर करते हैं, आपको बुलाया जाएगा टोकन नंबर देकर। उस टोकन को लेकर आप जब आप कलेक्टर ऑफिस में जाओगे तो आपकी बात को सुना जाएगा, और आपके एप्लीकेशन पर लिखा जाएगा कि अनिल गलगली की इस शिकायत को कितने 15 दिन में सॉर्ट आउट किया जाए, 1 महीने में सॉर्ट आउट किया जाए। अगर उसने सॉर्ट आउट नहीं किया तो उस अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है। तो ये हमारा लोकशाही दिन है। ये लोकशाही दिन इतना महत्वपूर्ण है, इसमें 3 पायदान है। लोकशाही दिन का पहला पायदान होता है कलेक्टर, सेकेंड पायदान होता है कि डिविजनल कमिश्नर, और उसने भी आपकी बात नहीं मानी तो आप डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर के सामने जाके बैठ सकते हो। मतलब लोकशाही दिन है बेसिकली चीफ मिनिस्टर का होता है। जो हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, उन्होंने लोकशाही दिन शुरू किया है। जब आपको निचले 2 पायदान में अगर आपको सफलता नहीं मिली, आपको न्याय नहीं मिला, तो आप डायरेक्ट मुख्यमंत्री के पास जाकर अपनी बात को रख सकते हो। ये हो गया लोकशाही दिन। सेकेंडली, अगर आपने थोड़ा स्टडी किया कि हमारे हर डिपार्टमेंट के इसमें एक सिटीजन चार्टर है, उसमें मराठी में कहते हैं कि नागरिकाची सनद, इंग्लिश में कहते हैं सिटीजन चार्टर।
उसमें भी कई सारे ऐसे इश्यूज हैं जो आपको कितने दिन में आपको आपकी समस्याओं पर कार्रवाई करने या आपकी समस्याओं को जवाब देने या आपकी समस्याओं को सुलझाने के लिए कितने दिन में सरकार के अधिकारियों को काम करने की आवश्यकता है, उसका सारा का सारा उन्होंने नियम और कानून बनाए हैं। उसे कहते हैं हम सिटीजन चार्टर, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। थर्डली हमारे पास है राइट टू सर्विस। आज राइट टू सर्विस काफ़ी लोकप्रिय हो चुका है, क्योंकि इसमें आपको ना 10 रुपये भरने हैं। अगर आपकी उन्होंने 3 महीने में शिकायत पर कार्रवाई नहीं की तो अब उस अधिकारियों के पास, जो उसके अपर अधिकारी के पास एक छोटा सा फॉर्मेट है, जैसे मनी लाइफ के आप इसमें चले जाएंगे तो शैलेश जी ने अलग अलग उसमें कई सारे उनके विषयों पर उन्हें लेक्चर्स दिए हैं, किस तरह से सिटीजन जो राइट टू सर्विस में अगर आपको 3 महीने में आपकी शिकायत को जवाब नहीं मिला, कैसे आप फर्स्ट अपील कर सकते हो, उसका फॉर्मेट है, डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने पड़ते हैं। बेसिकली एक बात ध्यान रखिए, अगर आप कोई भी शिकायत करते हो, ऑरली शिकायत मत कीजिए, हर चीज़ को रिटर्न में कंप्लीट कीजिए और सरकार का स्टैंप लीजिए। कि कई बार सरकारी बाबू कहते हैं कि आप कल आइए, परसों आइए, स्टैंप हम कल देंगे। अगर आपके पास स्टैंप होगा, आपने शिकायत किया हुआ, तारीख होगी, तो आपको इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करने का अधिकार प्राप्त होता है। अगर मैंने कहा कि मैं जाके फला फला अधिकारी को फला फला तारीख को मिला था और मैंने फला फला बात कही, फला फला को कोई रिप्लाई का कोई जवाब नहीं, आपने क्या कहा अब रिटर्न में लिखिए, क्या कहा रिटर्न में सबमिशन कीजिए, और जो कहा उसको रिटर्न में आप उसका एक्नॉलेजमेंट लीजिए। वही आपका प्रूफ होगा कि हम सरकार के विभाग में गए थे, हमने हमारी बात रखी, मगर उन्होंने हमारी बात को नहीं सुना। तो कहीं ना कहीं तो आपको एक दस्तावेज बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑरली आपने जो बात की, टेलीफोन जो बात की, व्हाट्सएप पर जो बात की, उसका कोई वैल्यू नहीं है। हर चीज़ को रिटर्न में लीजिए। जब आप रिटर्न में कंप्लीट करेंगे तो सरकार को भी रिटर्न में रिप्लाई देना पड़ेगा। ऑरली आप बात करेंगे तो सरकार आपको ऑरली भी रिप्लाई नहीं देगी। तो बेसिकली एज ए नागरिक, एज ए सिटीजन, हमें क्या करना है कि हर चीज़ की चाहे छोटी बात हो या बड़ी बात हो, अगर आपने रिटर्न में कंप्लीट करने की थोड़ी सी आदत रखी तो सरकार के अधिकारी भी डरेंगे कि फला फले ने रिटर्न में कंप्लीट की है, तो अगर रिटर्न में जवाब नहीं देंगे तो कल ये हमारे पर कार्रवाई कर सकते हैं। तो डर बनाने की ज़रूरत है। तो रिटर्न में कंप्लीट करने की आप अपनी आदत को शुरू कीजिए। सेकेंडली, जब आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन में डॉक्यूमेंट मिलते हैं तो सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। हम क्या करते हैं कि कोई चीज़ मिली, डायरेक्ट प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगे, होम मिनिस्टर को लिखेंगे, हमारा मसला है म्यूनसिपैलिटी का, जो मुंबई महानगर पालिका का, हम लोग दिल्ली को लेटर लिखेंगे, कोई वैल्यू नहीं है। हम लोग दिल्ली में वो जो उनका नया एक ऐप खुला हुआ है गवर्नमेंट का, हम पीएम को चिट्ठी लिखेंगे। आप क्या कीजिए, देखिए बेसिकली जो भी शिकायत की जो प्रणाली है भारत में, चाहे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हो, मुंबई महानगर पालिका हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कंसर्न ऑफिसर के पास अगर आपने शिकायत की, उसने आपको जवाब नहीं दिया, तब सारे कानून आपको लागू होते हैं। अगर आपने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, जरूरी नहीं कि वो अधिकारी आपको जवाब देगा, उसके पास चिट्ठी आते आते 2 साल लग जाते हैं। तो आपको बेसिकली एक माइंड रखना चाहिए कि हमें लगता है कि प्रधानमंत्री को लिख दिया तो हमारा मामला सॉल्व हो गया, मुख्यमंत्री को लिख दिया तो सॉल्व हुआ। हमें क्या करना है कि बेसिकली, जैसा कि मैं रहता हूँ समझो बांद्रा में, मेरा बांद्रा पुलिस में कोई मामला हो गया, तो पहले मुझे सीनियर पीआई इंस्पेक्टर ऑफ बांद्रा को ही लेटर लिखना है, क्योंकि वही आपका न्याय का अधिकारी है। बाद में एसीपी, डीसीपी और सेकंड आपका है। पहले आपको उसको एक मेमोरेंडम देना है कि मैं अनिल गलगली, मेरे साथ एक गलत हुआ है, एक गलत मेरे साथ एफआईआर हुआ है, इस पर आप कार्रवाई कीजिए। अगर उसने आपकी बात नहीं सुनी तो आपके पास एसीपी, डीसीपी आप ऊपर जा सकते हो, लेकिन बेसिकली आपको उस संबंधित कंसर्न ऑफिसर के पास शिकायत करने की आवश्यकता है। अगर आपने शिकायत की, उसने आपकी शिकायत को नहीं सुना, तो आपके पास बहुत सारे अधिकार है, बहुत सारे कानून हैं जो उसके खिलाफ आप जा सकते हो। मगर आपने अगर उसको ही चिट्ठी नहीं लिखी, आपने डायरेक्टली मुख्यमंत्री, पुलिस कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, डीसीपी, हम उल्टा आ जाते हैं। लेकिन हमको जाना चाहिए सीधा, जिस डिपार्टमेंट के पास, जिस विभाग के पास आपकी शिकायत है, पहला उसको एड्रेस कीजिए। अगर आपने उसको एड्रेस किया और उसने आपको उसका जवाब नहीं दिया, तो वो अधिकारी उसका जिम्मेदार होता है। उसको जवाब देना है कि आपने अनिल गलगली की चिट्ठी को क्यों जवाब नहीं दिया। अगर आपको हाई कोर्ट जाना है, कल आपको उसके खिलाफ और कहीं पर जाना है, तो आपके पास बेसिक होना चाहिए कि मैंने सीनियर इंस्पेक्टर को फला फला तारीख को मेमोरेंडम दिया था सर, उन्होंने मेरी बात को सुना नहीं। तो आपके पास एक मामला बनाने के लिए एक डॉक्यूमेंट बनता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ है कि हम उस कंसर्न को छोड़कर सभी को चिट्ठी लिखते हैं, तो आपका काम जीवन में नहीं होता है। तो हम कहते हैं कि हम 10 साल से मामले का फॉलोअप कर रहे हैं, कोई कहता है कि 15 साल से मामले का फॉलोअप कर रहे हैं। बीच के दिनों में मेरे पास एसआरए के कुछ लोग आए थे, तो उनका मामला था भाईकल है, शैलेश जी ने मेरे पास उनको रेफ़र किया था।
तो उनका कोई इशू नहीं था, 6 लोगों को घर नहीं मिल रहे थे। तो हम लोगों ने थोड़ी सी कोशिश की, उन्हें थोड़ा गाइड किया, उनको 2 साल में 6 लोगों को घर मिला, तो 6 साल से फॉलोअप कर रहे थे कितना। लेकिन वो कंसर्न डिपार्टमेंट के पास नहीं जा रहे थे, विजिलेंस डिपार्टमेंट और पुलिस कमिश्नर के पास जा रहे थे। जो SRA होता है, जो हमारा हाउसिंग डिपार्टमेंट होता है, उसके पास जाने की आवश्यकता। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं कि विषय को छोड़कर दूसरे के पास चले जाते हैं, तो उसके वजह से मामला अपना बिगड़ जाता है। तो बेसिकली राइट टू इन्फॉर्मेशन तो काफ़ी इजी है। राइट टू इन्फॉर्मेशन में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मगर आपके पास इन्फॉर्मेशन पहले से अवेलेबल है। मुझे पता है कि ये चीज़ गलत है, तो उसके लिए RTI मत डालिए। RTI उसी वक्त उसका इस्तेमाल कीजिए जब आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं हो, आपको जानकारी नहीं है, तब आप RTI डालिए। लेकिन क्या हुआ है कि एक फैशन हो गया है, आपके पास डॉक्यूमेंट है, लेकिन मैंने इस तारीख को सरकार के पास शिकायत की थी, उसकी कॉपी मुझे दीजिए, उसके लिए लोग भी RTI डालते हैं। अरे आपने खुद शिकायत की है तो कॉपी आपके पास होनी चाहिए। लेकिन लोग क्या कहते हैं कि खुद की कॉपी के लिए फिर RTI डालते हैं। तो कई बार जो अधिकारी कहते हैं कि हमारे पास बर्डन हो रहा है अननेसेसरी। जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, जो आपके रिकॉर्ड पर है, मामला कोर्ट में है, तो उसके लिए RTI का इस्तेमाल मत कीजिए। क्योंकि RTI क्या करता है कि आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट देने की गारंटी देता है, मगर RTI मिलने के बाद उस डॉक्यूमेंट का कैसा इस्तेमाल करना है, कैसे सरकार के पास जाके उसके लिए फॉलोअप करना है, कैसे उस पर प्रेशर बनाना है, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे अपना ब्लॉग के माध्यम से, या जो प्रिंट मीडिया के माध्यम से। क्योंकि आपको बता रहा हूँ कि आज जिस तरह से मुंबई में अलग अलग इशू चलते हैं, अगर आपने हाईलाइट किया इशू को, तो निश्चित तौर पर जो कंसर्न डिपार्टमेंट के अधिकारी है उन्हें भी पता है गलत हो रहा है, मगर उसको आपने अच्छे तरीके से पेश किया तो निश्चित तौर पर उस पर कहीं ना कहीं तो कार्रवाई होती है। कई सारे ऐसे मामले हैं, जैसे कि FSI उल्लंघन का मामला होता है। कई बार हम लोग क्या कहते हैं कि छोटे छोटे इश्यूज़ को लेकर बड़ा विषय करते हैं। जैसे हमारे पास कई लोग आते हैं, उसका मामला होता है घर का, बोलते साहब देश का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, आप हमको समय दीजिए। जब वो हमारे पास आ जाते हैं तो मालूम पड़ा उसका घर है, उसने एक घर का 2 घर कर दिया, उसको एक घर मिल चुका है SRA में, उसी को लेकर वो 10-10 साल लड़ाई लड़ता है। तो कहीं ना कहीं तो हमें सोचने की ज़रूरत है कि हमें RTI किस मामले में डालना है, किस मामले में नहीं डालना है। क्योंकि सरकार ने आपके पास RTI के अलावा अलग अलग अपने कानून दिए। अगर आपने सही समय पर उस कानून का इस्तेमाल किया, जैसे कि आज मुंबई म्यूनसिपल जो अलग अलग वार्ड ऑफिसेस है, अभी हमारे वार्ड लेवल में क्या इश्यूज होते हैं कि पानी की समस्या, किसी का सीवरेज लाइन का इश्यू होता है, किसी ने इलीगल स्ट्रक्चर किया होता है, तो उसके लिए आपको RTI डालने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि म्यूनसिपल ऑफिस जो वार्ड ऑफिस है, वार्ड ऑफिस में वो लोग सोमवार को बैठते हैं, उसमें वो लोग लोगों की शिकायत को सुनते हैं और बाकायदा पब्लिक ग्रीवेंस करके उनकी जो कमेटी होती है, वार्ड ऑफिसर खुद उसको एड्रेस करता है। अगर आपने रिटर्न में कंप्लेंट लेके गए तो उस पर ऑर्डर भी पास होती है और उस पर काम भी होता है। मगर उसके लिए अगर आपने RTI डाला तो निश्चित तौर पर उसको कोई लाभ नहीं होता। क्योंकि जो चीज़ें आपको पता है कि ये इलीगल है, या अगर पानी की समस्या है, या पर ये इश्यूज़ है, उसके लिए RTI मत डालिए। RTI उसी के लिए डालिए जब आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा। आपके पर्सनल इश्यूज़ है, उसके लिए RTI डाल सकते हो, तो उसके लिए आपको बेसिकली उधर कम से कम उस पर इंगित करना पड़ेगा कि इस विषय को लेकर हमने इतनी बार फॉलोअप किया है। क्योंकि आज RTI और राइट टू सर्विस ये दोनों अलग अलग है, मगर मेरा मानना है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन में इन्फॉर्मेशन लीजिए, उस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके आपके कोई भी इश्यूज़ हो, चाहे आपका पर्सनल मामला हो, सामाजिक इश्यू हो, या बहुत बड़ा इश्यू हो, उसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। आज जिस तरह से मुंबई में, जैसे कि मुंबई महानगर पालिका ने ट्विटर के माध्यम से आज 24 म्यूनसिपल वार्ड है, हर वार्ड ने अपना ट्विटर हैंडल चालू किया है। मेरा जो अनुभव है, शायद कोई मेरे से सहमत होगा नहीं होगा, आई डोंट नो, लेकिन अगर आपने ट्विटर के माध्यम से उस स्पेसिफिक इशू को एड्रेस किया तो विद इन 48 आवर्स में उस इशू को महानगर पालिका सॉर्ट आउट करती है। चाहे वो वार्ड ऑफिस का मामला हो, गार्डन डिपार्टमेंट हो, रोड डिपार्टमेंट हो। जैसे कि अभी कोस्टल रोड ने भी अपना ट्विटर हैंडल चालू किया है। अगर किसी को कोस्टल रोड को लेकर इश्यूज़ होगा तो माई कोस्टल रोड उनका भी ट्विटर हैंडल है। तो म्यूनसिपैलिटी ने आपकी सुविधाओं के लिए, नागरिकों की सुविधाओं के लिए अलग अलग ट्विटर हैंडल इसलिए बनाए हैं कि आप स्पेसिफिक वहाँ पर आप उसको टैग कीजिए, इश्यू को सॉर्ट आउट हो जाएगा। 48 आवर्स में सॉर्ट आउट 101% हो जाते हैं। सेकेंडली, अगर आपकी और कोई शिकायत होगी, आपको पता है कि मुझे ट्विटर चलाने नहीं आता है, मुझे पता नहीं कि कैसे सिटीजन चार्टर है, मुझे पता नहीं कि लोकशाही दिन क्या है, तो आप 1916 एक नंबर है, म्यूनसिपैलिटी ने एक 1916 नंबर शुरू किया हुआ है, वहाँ पर भी आप शिकायत दर्ज कर सकते हो। हाँ, 1916। तो वहाँ पर आप बेसिकली आपकी जो अलग अलग समस्या है,
कोई भी इश्यूज़ हो उसको आप अगर 1916 में आपने कंप्लीट कर दी तो आपको डिटेल्स लेके आपको कंप्लीट नंबर देंगे, वो नंबर जनरेट हो जाता है और कंसल्ट डिपार्टमेंट के पास आपकी शिकायत को वो लोग पहुँचाते हैं। बाद में आपको उसको फॉलोअप करने की भी आवश्यकता है। हाँ, ओनली फॉर BMC 1916। तो वहाँ पर भी अलग अलग इश्यूज़ पर आप कार्य कर सकते हैं। सेकेंडली, म्यूनसिपैलिटी की जो वेबसाइट है, अब वेबसाइट पर जाएंगे तो उन्होंने वेबसाइट पर भी सिटीजन सर्च करके एक कॉलम शुरू किया है। समझो आप जिस बिल्डिंग पे रहते हैं, आपको पता करना है कि मेरी बिल्डिंग लीगल है कि इलीगल है, उससे मिली है कि नहीं मिली है, या कोई प्रपोजल मेरे बिल्डर ने डाला है कि नहीं डाला है। तो अगर आपने सिटीजन सर्च में जाकर CTS नंबर और वार्ड नंबर डाल दिया तो पूरी की पूरी बिल्डिंग की कुंडली आप सामने आ जाती है। तो आपको RTA करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए शैलेश जी और भास्कर प्रभु जी का आप तालियां बजा के अभिनंदन कीजिए, क्योंकि जब म्यूनसिपैलिटी में कमेटी थी तो शैलेश जी और भास्कर जी की वजह से कई सारी चीज़ें ऑनलाइन करने का सरकार ने प्रयास किया है। तो कहीं ना कहीं तो हमें कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है। हम लोग क्या कहते हैं कि आंखें बंद करके चलते हैं तो आपको गिरोगे, थोड़ा आँख खुला करके चलोगे तो वेबसाइट पर आपको 90% चीज़ें अवेलेबल है। क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बीच में मैं P दक्षिण ऑफिस में गया था, MMRD में हम लोग जाते हैं, तो जहाँ पर भी लोगों ने सेक्शन जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 4 को इम्प्लीमेंट किया है, वहाँ पर RTA एप्लीकेशन कम आ रहे हैं, वहाँ पर शिकायतें कम आ रही है, क्योंकि उन्होंने सारा का सारा डेटा ऑनलाइन करने की कोशिश की है। आज MMRD ने 90% अपने प्रोजेक्ट की जानकारी को ऑनलाइन किया है। कुछ जगह पर अपडेट नहीं होता है तो हमें थोड़ा सा प्रयास करने की ज़रूरत है। तो निश्चित तौर पर राइट टू इन्फॉर्मेशन के बाद सोशल मीडिया के माध्यम से रिटर्न जो अलग अलग हमको सरकार ने कानून दिए, जो अधिकार दिए, उसके माध्यम से अगर हमने थोड़ा सा प्रयास किया तो निश्चित तौर पर आपका हर एक काम हो सकता है। दूसरी बात है कि जब भी आप शिकायत करते हो, शिकायत करने का भी एक फॉर्मेट इसलिए होता है कि हम जब शिकायत करते हैं तो सबसे पहले अपना पूरा नाम लिखने की आवश्यकता है। नाम के बाद अपना पूरा एड्रेस, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। कई बार क्या होता है कि लोग ईमेल पर भी आपको रिप्लाई देते हैं, कई लोग व्हाट्सएप पर रिप्लाई देते हैं। तो हम लोग हमारा नाम मत छुपाइए। कई लोग आते हैं ना कि अगर हमने RTA की तो सामने वाले को पता चल जाएगा, हमने कंप्लेंट की तो सामने वाले को पता चल जाएगा, तो आप कंप्लेंट मत कीजिए। आपको कंप्लेंट करने का कोई अधिकार नहीं है। डरोगे तो आपको कई लोग डराएंगे। इसके लिए आपको थोड़ा खुला होना चाहिए, बिंदास होना चाहिए कि जो मैं शिकायत करूँगा, जैसे कि हम लोगों की इन्फॉर्मेशन मांगते हैं और किसी ने मेरी इन्फॉर्मेशन मांगी तो वो देने के लिए भी आपको तैयार होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों की जानकारी मांगते हैं कि फला फला ने क्या किया, इस बिल्डिंग का OC है क्या। अगर किसी ने मेरी जानकारी मांगी तो आपको 24 आवर्स इन्फॉर्मेशन को तैयार रहना पड़ेगा, तब वो RTA का मतलब है। यानी हम दूसरे के लिए RTA करेंगे तो RTA है, जब मुझे कोई RTA से पूछेगा वो बोले मैं नहीं दूंगा। जैसे कि बीच में म्यूनसिपैलिटी ने मुझे लेटर लिखा कि आपने जो शिकायत की थी उसके लिए कुछ एप्लीकेंट आपकी कंप्लीट कॉपी मांग रहे हैं, तो मैंने उनको रिप्लाई लिखा कि जब मैंने शिकायत की वो डॉक्यूमेंट मेरा नहीं है, वो सरकार का हो चुका है, तो डिसीजन आप लीजिए। और तो भी अगर आपने मुझे पूछा है तो मेरी सम्मति है उस डॉक्यूमेंट को दिया जाए। तो आपको उतना खुला होना चाहिए। कई लोग बोलते कि मेरी कॉपी सुलेमान को क्यों दूँ, मेरी कॉपी मैं अफजल को क्यों दूँ। ऐसा नहीं चलेगा। जब आप राइट टू इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हो, जब आप दूसरे की जानकारी मांगते हो, तो अगर आपकी जानकारी किसने मांगी तो आपको देने के लिए तैयार होने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं चलेगा कि दूसरे की जानकारी अच्छी है, आपकी अच्छी नहीं है। तो दोनों चीज़ों को समझिए। सेकेंडली, सोशल मीडिया के माध्यम से जब आप इसका इस्तेमाल करते हो तो अभी जैसे कि इंडियन रेलवे सबसे फास्ट रिप्लाई आज की तारीख में रेलवे डिपार्टमेंट देती है। अगर आपने रेलवे को लेकर, सेंट्रल रेलवे हो, वेस्टर्न रेलवे हो, छोटी सी भी शिकायत की तो विदिन 10 से 15 सेकेंड में उसका रिप्लाई आता है। उनकी रेल सेवा करके उन्होंने एक एजेंसी चालू की है, वो आपको डायरेक्टली आपका नंबर मांगती है और आपसे पूरी की पूरी आपकी जानकारी लेती है और उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती है। RPF हो, GRP हो या उनका DRM ऑफिस हो, ये लोग ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हो। उसमें दो चीज़ें होती है। जैसे आपने ट्विटर पर शिकायत की तो उनका आता है कि DM में आपका नंबर भेजिए। DM मतलब डायरेक्ट मैसेज। तो डायरेक्ट मैसेज में वो लोग अपना नंबर इसलिए मांगते हैं क्योंकि आपका नंबर सार्वजनिक नहीं हो। जब वो डायरेक्ट मैसेज में नंबर देते हैं, वो नंबर पर अधिकारी कॉल करके आपने जो ट्वीट किया है, आपने जो शिकायत की है, तो उस शिकायत की पूरी जानकारी लेकर शॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। और मेरा अनुभव है कि रेलवे डिपार्टमेंट में 99% उसका रिजल्ट है। कितना? 99%। लेकिन आपको कोशिश करने की आवश्यकता है, क्योंकि हर चीज़ के लिए आप RTA डालने जाओगे तो आपको 30 डेज लगेंगे। कुछ चीज़ें फास्ट होती है, उसको आपको रिप्लाई 24 आवर्स या 48 आवर्स में अगर उसका निदान होगा तो उस शिकायत का कोई वैल्यू होती है। तो आप ये चीज़ों को समझिए, क्योंकि अगर आपने ट्वीट किया, आपने ईमेल किया,
या आपने फेसबुक के माध्यम से कोई शिकायत की तो आपको 24 आवर्स अवेलेबल होने की भी आवश्यकता है। तो आपने अपना मोबाइल बंद कर दिया, इंटरनेट डाटा बंद कर दिया, तो सामने वाला आपको ढूंढते रह जाता है। तो मेरा मानना है कि मुंबई महानगर पालिका, रेलवे डिपार्टमेंट और जो अलग अलग डिपार्टमेंट, वो लोग सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव है, और आपने छोटी सी भी शिकायत की, सही होगी तो उसका रिप्लाई आएगा, कार्रवाई होगी, झूठी होगी तो वो ताबड़तोब आ जाएगा, इट इज़ अ फेक, क्योंकि उनके पास पूरी सिस्टम होती है। तो उसका भी आप इस्तेमाल अच्छी तरीके से कर सकते हो। मेरा मानना है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन ये आपको सरकार ने दिया हुआ अधिकार है, मगर जो सोशल मीडिया है, जो अलग अलग जो ईमेल के माध्यम से, वो आपका अधिकार है, आप इसको 24 आवर्स यूज़ कर सकते हो। इतना ही मानना है मेरा कि RTI उसी वक्त कीजिए जब आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी तो RTI मत कीजिए। आप उसके लिए राइट टू सर्विस, सिटीजन चार्टर, ट्विटर है, सोशल मीडिया है, अलग अलग माध्यम से सरकार से आप जवाब तलब कर सकते हैं। जैसे कि अभी एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ अंतिम, कि जैसे कि सरकार की अलग अलग पॉलिसी बनती है। जैसे कि कोई सरकार की पॉलिसी बनती है तो एक दिन में नहीं बनती। जैसे कि अगर हमारे कोई मुंबई शहर में किसी MLA MP को अगर टॉयलेट भी बनाना है तो उसको 1 ईयर लगते हैं, क्योंकि म्यूनसिपलिटी अधिकारी आएंगे, उसका पूरा विजिट करेंगे, उसकी रिपोर्ट बनाएंगे, फिर उस प्रपोजल को सबमिट करते हैं, तो कम से कम 1 साल चला जाता है। मगर सरकार के जो नियम होते हैं, जैसे कि कोई GR है, गवर्नमेंट रेजुलेशंस, वो जल्दी मतलब चेंजिंग नहीं होते, उसमें समय लगता है। मगर आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जब 7-8 साल पहले गवर्नमेंट ने हेमा मालिनी, जो फिल्म की बड़ी एक्ट्रेस थी, उसको एक प्लॉट दिया। उस प्लॉट की कीमत थी 70 करोड़, लेकिन सरकार ने एक 1983 GR का इस्तेमाल करते हुए उसे सिर्फ 70,000 में देने का काम किया। जब वो न्यूज़पेपर में न्यूज़ फ्लैश हुई तो हम लोग ने राइट टू इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके पूरी फाइल को मंगाया, तो पता चला कि सरकार ने 2021 में 1983 का GR का इस्तेमाल किया था। तो हमने राइट टू इन्फॉर्मेशन के माध्यम से उस पूरी जानकारी को इकट्ठा किया और सरकार को चिट्ठी लिखी और प्रेशर बनाया। मतलब मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो डॉक्यूमेंट लिए, सरकार को चिट्ठी लिखी, फिर हमने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रेशर बनाया। आपको ताज्जुब होगा कि विदिन 15 डेज गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने कैबिनेट की बैठक ली और 83 GR को कैंसिल करके उस GR को इम्प्लीमेंट करने का काम किया। इट इज़ अ विन ऑफ द RTI, क्योंकि RTI का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। RTI लेने के बाद आपने अगर सरकार को चिट्ठी लिखकर उसमें थोड़ा प्रेशर बनाया तो सरकार को भी लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि जो आज सरकार है उसको पता नहीं होता कि 10 साल पहले क्या गलत हुआ है, 15 साल पहले क्या गलत हुआ है। जब हम उदाहरण के तौर पर कुछ चीज़ों को उनके सामने पेश करेंगे, उसके डॉक्यूमेंट्स देंगे, उसको प्रेशर बनाएंगे, क्योंकि तीनों चीज़ें साथ में, राइट टू इन्फॉर्मेशन तो है ही है, मगर हमें चिट्ठी लिखने की ज़रूरत है। चिट्ठी लिखने के बाद अगर हम लोगों ने प्रेशर बनाया तो निश्चित तौर पर हर काम हो सकता है जो असंभव है। तो मुख्यमंत्री उस वक्त देवेंद्र फडणवीस थे, और वो GR जो हेमा मालिनी के लिए लाभदायक था और किसी के लिए भी लाभदायक हो सकता था, तो उन्होंने ताबड़तोड़ विदिन 15 डेज में कैबिनेट की बैठक लेके वो GR को स्क्रैप करने का काम किया, जिसकी वजह से अभी महाराष्ट्र में इस तरह से सस्ते दाम में कोई ज़मीन फिलहाल नहीं ले सकता है। सेकेंडली हेमा मालिनी जी ने भी उस लैंड को नहीं लिया, उसमें कई सारे डिस्प्यूट थे। यानी आपको बता रहा हूँ कि एक छोटे से RTI की वजह से सरकार ने अपने नियम को बदला, 70 करोड़ की ज़मीन बच गई जो 70,000 में हेमा मालिनी को जा रही थी। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते वक्त हमें थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है कि डिपार्टमेंट कैसा है। जैसे कि वो कलेक्टर डिपार्टमेंट था और इट इज़ अ महसूल विभाग था, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तो उसके लिए आपको डायरेक्टली रेवेन्यू मिनिस्टर के पास जाना इतना आसान नहीं होता है। मगर जब मीडिया में खबरें चली, प्रेशर बना, कंटिन्यू फॉलोअप होने के बाद सरकार को लगा कि कुछ गलत हो रहा है, अगर हमने चेंज नहीं किया तो हमारी सरकार की इमेज पर कहीं ना कहीं तो दाग लगेगा। तो ये चीज़ें जब हम समझाने में सक्सेस होते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप के कई सारे माध्यम होते हैं, सोशल मीडिया, जो हमारी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जैसे हम लोग रिटर्न लेटर लिखते हैं, या कई सारे MLA MPs लेटर लिखेंगे कि ये चीज़ को बदलिए। तो कई सारे ऐसे प्रेशर ग्रुप को हमको बनाने की आवश्यकता है ताकि हर एक का काम समय पर हो सके। मेरा इतना ही छोटा सा मानना है कि जीवन में हर एक व्यक्ति ने RTI तो करना चाहिए, लेकिन RTI करने के बाद अगर सरकार को चिट्ठी लिखी, थोड़ा सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, थोड़ा अपने ब्लॉग के माध्यम से उन चीज़ों को आपने सार्वजनिक किया। क्योंकि मेरा मानना है जब मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है, भले उसके लिए मुझे 1 रुपया खर्चा हो, 1,000 रुपया खर्चा हो, 10,000 रुपया खर्चा हो, बाद में वो इन्फॉर्मेशन मेरी नहीं रहती। इसे हमको सार्वजनिक करना चाहिए, क्योंकि जो मैंने मेहनत करके इन्फॉर्मेशन को निकाला है, अगर हमने उसको पब्लिक डोमेन में डाल दिया,
मेरे ब्लॉग के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, तो दूसरा जो व्यक्ति होगा जिसे उस इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता है तो उसे अल्टे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले से इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ये चीज़ सरकार को हम समझा रहे हैं कि जो चीज़ें आपको आरटीआई से आप लोगों को देते हो तो उसे ऑनलाइन कीजिए। कई सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के लोगों ने कई सारे एप्लीकेशन की कॉपीज़, डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन किया है, जैसे कि दिल्ली में कुछ सारे डिपार्टमेंट हैं, महाराष्ट्र में कुछ सारे डिपार्टमेंट हैं, मगर इसके लिए भी हमारे लोग विरोध करते हैं। अरे भाई साहब, विरोध क्यों कर रहे हो? जब आप सरकार से इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो, खुद की जो इन्फॉर्मेशन जो आपको मिली आप देने में आपको क्या दिक्कत है? अगर ऑनलाइन होती है तो एक प्रकार से जो ब्लैकमेलिंग होना या उसका मिसयूज़ होना, जो आरोप लगते हैं, पब्लिक डोमेन में आ गया तो कोई उसका मिसयूज़ नहीं करेगा, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें सरकार के पास पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। तो इसी के लिए मेरा मानना है कि हर एक को जो आप चीज़ निकालते हो तो उसे आप ऑनलाइन कीजिए, आपके माध्यम से पब्लिक डोमेन में लाइए, ब्लॉग के माध्यम से लोगों के बीच में लाइए, ताकि उस चीज़ का इस्तेमाल दूसरा कोई व्यक्ति कर सकता है। जैसे कि मैंने बीच में एक इन्फॉर्मेशन निकाली, वो इन्फॉर्मेशन कमलाकर शेनाई जी को ज़रूरत थी, उन्होंने मुझे ईमेल किया, मैंने ताबड़तोड़ ईमेल कर दिया। मुझे कई बार ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए 10-15 कॉल आते हैं, हम लोग पूछते ही नहीं कि आपको क्यों चाहिए, क्योंकि सरकार ने भी क्लॉज निकाल दिया कि इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए मत पूछिए। तो मुझे किसी व्यक्ति ने फ़ोन किया, मैं क्यों पूछूँ आपको क्यों चाहिए? मतलब भाई साहब आपका ईमेल भेजिए, आपको मैं ईमेल कर देता हूँ। तो ये थोड़ा सा अगर आप भी पारदर्शक रहेंगे एज ए एक्टिविस्ट, एज ए सिटीजन, तो सरकार को लगेगा कि बाबा कुछ काम हो रहा है। हम हमारी इन्फॉर्मेशन को छुपाएंगे और सरकार की इन्फॉर्मेशन को मांगेंगे, ये दोहरा काम नहीं चलेगा। तो मेरा मानना है कि सभी को मिलकर अपनी चीज़ों को ऑनलाइन करना चाहिए, पब्लिक डोमेन में डालना चाहिए, ताकि हर एक चीज़ का खुलासा हो। तो निश्चित तौर पर हर एक व्यक्ति आरटीआई का इस्तेमाल करे, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करे, और जितना हो सके प्रेशर बनाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका हर एक काम होगा। उसके लिए आपको किसी एमएलए के पास, किसी एमपी के पास जनहित याचिका करने की भी आवश्यकता कम पड़ेगी, क्योंकि कई सारे लोग कोर्ट में जाते हैं, लेकिन कोर्ट में भी जो आरटीआई को लेकर जो उनका रुख है वो इतना ठीक नहीं है, इतना सकारात्मक नहीं है। तो उसके लिए फिर आप वकीलों पर पैसा खर्चा करोगे, खुद का समय खर्चा करोगे। उससे अच्छा अगर आपने पब्लिक डोमेन के माध्यम से उसको प्रेशर बनाया, तो निश्चित तौर पर जिस तरह से हेमा मालिनी के प्लॉट को लेकर सरकार ने खुद जीआर रद्द किया, ऐसे स्थितियाँ बनाई, ऐसे मामले बनाइए ताकि सरकार को बाध्य होना पड़ेगा कि जो इन्फॉर्मेशन आई है उस पर काम करने के लिए हमको इस नियम को बदलना पड़ेगा, इस कानून को रद्द करना पड़ेगा, तब उस आरटीआई की जीत होगी, आपकी जीत होगी। थैंक यू। Thank you, Mr. Galgali, for that insightful, inspiring, and powerful talk. Your work continues to inspire us all to use RTI, social media, and so many other tools that you have told us about today.